Good morning, dear students. Welcome to all in your physics class. Dear students, in previous classes, we have studied about the chapter number first. Now it is the turn of next chapter, NCERT second chapter, and that chapter is electric potential and capacitance. It is the portion of first unit of first book, that was electrostatics. So dear students, I want to start the new topic, new video. So welcome to all in your physics channel. Dear students, I want to explain the content or topic at my level, and I want to easy them. I am not comparison with the others. What's they other are teaching, what's they other are explaining. Only I want to do my efforts, which you can utilize in your life, in your career. So dear student, let's start chapter number 2, electrostatic potential and capacitance. Clear? So let's start. Chapter number 2, electrostatic potential. Electrostatic potential and capacitance. So let's have a start the topic. So the first topic of the chapter, electric potential. Electric potential. Dear students, I have written here electrostatic potential in starting of the NCERT. When electrostatic defined, then I have explained there we will study about force, electric field and potential due to point charge, due to rest of the charge, rest position of the charge. So in previous videos we have studied electrostatic force. What was? K Q1 Q2 over R square. Electrostatic field, field due to rest of the charge, force due to rest of the charge, K Q over R square. These two contents we have studied in chapter number 1. Clear? Due to rest of charge. Okay. Now the term of potential due to electric charge, and that will be K Q over R. Same pattern here, K here, K here, K is also here. Means K equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q, sorry.
That's value 9 into 10 to the power 9 Newton meter square per coulomb square. Same value used for here, and here also. So it is the turn of potential. So in this video we will study about it. First of all, I want to explain the content of electric potential. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में पहले मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। देखिए, सपोज बेटा यहां कोई पॉइंट चार्ज क्यू रखा हुआ है। क्लियर? प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा है, फर्स्ट चैप्टर में खूब सारा। इट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज। सपोज बेटा एक बहुत इनफाइनाइट डिस्टेंस पर बेटा एक चार्ज ले लिया जिसको कहा क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज। नाम क्या है इसका? क्यू नॉट, जिसे कहते हैं टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज क्या है? वेरी स्मॉल चार्ज, वेरी स्मॉल चार्ज। इस क्यू के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा छोटा सा है। ठीक है, अब बात यह करनी है बेटा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस बात को लेकर कहेंगे। तो जब इनफाइनाइट पॉइंट पर यह क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है, इनफाइनाइट पॉइंट पर इस पॉइंट चार्ज का कोई अट्रैक्शन रिपल्सन काम नहीं करेगा, क्योंकि बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पर रखा है, छोटा सा चार्ज है। ठीक है, चलिए ये एक वर्ड और कह दूंगा कि जब यहां ये रखा हुआ है तो इस टाइम पीरियड पर इसका वर्क डन, अगर मैं ये कहूं बेटा, थोड़ा सा बाद में बताऊंगा कि वर्क डन एट इनफाइनाइट पॉइंट 0। क्यों 0? अरे रखा हुआ है तो 0 ही होगा, मैंने लिख दिया। चलिए अब करना क्या है, इस चार्ज को उठा के बेटा यहां लेके आना, ऐसे, या सीधा चलो इस रास्ते से ले आओ, सीधा शिफ्ट करके, और या सपोज सीधा ऐसे रास्ते से ले आओ। बोले सर ये क्या बना दिया? बना लिया। इस क्यू नॉट चार्ज को शिफ्ट किया इनफाइनाइट पॉइंट से, और मान लो मैंने इस पॉइंट का नाम लिया बेटा क्या? पी। ज्यादातर हम लेते हैं, जैसा मैंने कहा पी पॉइंट ले लिया, और पी पॉइंट यहां से आर डिस्टेंस पर है, जरूरत पड़ेगी फिर बाद में लिखेंगे। तो इनफाइनाइट पॉइंट से पी पॉइंट तक लेकर आने में कितना वर्क करना पड़ेगा? वर्क तो करना पड़ेगा। वाह, कैसे? क्योंकि ये चार्ज भी पॉजिटिव है, ये चार्ज भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज को यहां आने नहीं देगा। तो वर्क कौन करेगा? वर्क कौन करेगा? एक्सटर्नल एजेंसी। वर्क कौन करेगा? एक्सटर्नल एजेंसी। मान लो ये रिपल्सन लगा हुआ है, मैं इसको खींच के लेके आ रहा हूं, भाई ये चार्ज है, मैं खींच के लेके आ रहा हूं, तो मैं कौन हो गया? एक्सटर्नल एजेंसी। मैं इसको खींच कर लेकर आ रहा हूं इस डायरेक्शन में। अब ये एक्सटर्नल एजेंसी चाहे तो बेटा यहां से लेकर आ जाए, चाहे इस रास्ते से लेकर आ जाए, और चाहे इस तीसरे रास्ते से लेकर आ जाए, जिसे W3 कहते हैं। 11th क्लास में एक वर्ड पढ़ा था, W1 इक्वल टू W2 इक्वल टू W3 इक्वल टू, ऐसा पढ़ा था, जिसका नाम था कंजर्वेटिव। क्या? कंजर्वेटिव। तो जो भी फोर्स इस पर लगा हुआ है, ध्यान रखना है, कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से हैं? कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से हैं बेटा? एक तो हमने पढ़ा था 11th क्लास में ग्रेविटेशनल फोर्स,
और दूसरा अब पढ़ रहे हैं बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दोनों क्या हैं? कंजर्वेटिव है। तो कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि चाहे बेटा वर्क W1 के रास्ते से हो, चाहे स्ट्रेट सीधे रास्ते से हो, चाहे इस तीसरे रास्ते से हो, वर्क रिमेन सेम। क्लियर? तो एक बात तो समझ में आ गई कि वर्क कोई भी ले लीजिए, ले लिया हमने। तो इनफाइनाइट पॉइंट से लेकर लाते लाते P पॉइंट पर ला दिया। यहां कहा मैंने वर्क एट P पॉइंट, वर्क एट P पॉइंट, इनफाइनाइट से P तक। यानी ये कह दो, यहां लिख रहा हूं वर्ड इनफाइनाइट से लेकर कहां तक बेटा? P पॉइंट तक का। ये वर्क किसको लाने में किया? Q नॉट चार्ज को लाने में। क्यों? किसको लेकर आ रहे हैं? टेस्ट चार्ज को। Q नॉट चार्ज को लाने में किया बेटा। इसी को कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बड़े आराम से ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको V से लिखते हैं। तो इस Q नॉट चार्ज को यहां तक लाने में वर्क किसने किया? एक्सटर्नल एजेंसी ने। एक्सटर्नल एजेंसी को वर्क क्यों करना पड़ा? क्योंकि ये पॉइंट चार्ज यहां बैठा था, जो इस पर बाहर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लगा रहा था, तो फोर्स तो इधर लगा रहा है, तभी तो हमें वर्क करना पड़ेगा। अगर ये कोई फोर्स ही नहीं लगाए तो वर्क किस पे करेंगे? समझ रहे हैं? हाँ। तो जो वर्क किया भाई, फोर्स का डायरेक्शन इधर, यहां फोर्स इसलिए नहीं था कि इनफाइनाइट पर तो इसको क्या मान लेंगे? नेग्लिजिबल। अरे यहां तो जीरो था, इसलिए तो मैंने कहा वर्क इक्वल टू जीरो। यहां कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। वर्क कब करना पड़ा? जब रास्ते से उठा के यहां ले आए, या इधर ले आए, या यहां ले आए। तो इतने पर तो ये फोर्स लगा लेगा ना। ये फोर्स देखो यहां कितना लगेगा, बताओ जल्दी से। सामने F E इक्वल टू, देखो क्या है फॉर्मूला? K, Q1 की जगह है Q, और Q2 की जगह कितना है? Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। ये तो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है ना। यहां तक इतना फोर्स लगने लगेगा। जब इतना फोर्स लगेगा तो बाहर वाली एजेंसी को काम करना पड़ेगा। कितना काम किया? वर्क। कहां से? इन्फिनिटी से लेकर P पॉइंट तक, इन्फिनिटी से लेकर P पॉइंट तक। किस चार्ज को लाने में? Q नॉट को लाने में। इसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हो गया? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अब डिफाइन कर दो। हाउ यू विल डिफाइन दैट? कैसे कहेंगे? अब आराम से आपकी एनसीईआरटी की डेफिनेशन, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज। लिखो बेटा, क्या नाम है उसका? Q नॉट। और इसी को एक वर्ड और कह देते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कह सकते हैं। यूनिट पॉजिटिव चार्ज वर्ड भी कहेंगे, ध्यान रखना है। ये दूसरा वर्ड लिख दिया है मैंने, एनसीईआरटी में मिलेगा आपको, या बहुत सारे टीचर इस वर्ड से भी पढ़ाएंगे, सही है। टेस्ट चार्ज और यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहां से बेटा? फ्रॉम इनफाइनाइट पॉइंट से टू ए पॉइंट। टू ए पॉइंट कहां है? ये रहा P। लेकिन ये P पॉइंट कहां है? इस पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। ये चार्ज लेकर आ रहे हैं, तो यहां क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बनाया था ना छोटा सा एरो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो बनाया ना ये, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में लेकर आए ना ये। फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट P इन एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड। ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड जरूरी है। अच्छा, एक चीज बड़ी और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है काम की, ध्यान रखना है। ये इतना स्लो लेकर आना है, इतना स्लो लेकर आना है कि इसकी जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो कांस्टेंट होनी चाहिए। एक्सीलरेशन 0 होना चाहिए। बोले सर ये नहीं क्या बात ले आए? हाँ, क्यों?
क्योंकि जो कंजर्वेटिव फोर्स लगा हुआ है, ये ध्यान रखना है कि इसकी कोई भी, इस चार्ज की कोई काइनेटिक एनर्जी या कोई दूसरी पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है इसकी। तो मैंने लिखा द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट P इन एक्सटर्नल फील्ड is called electric potential, जिसको बेटा V से लिखते हो। दैट इज V इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू, कहां लिखा है मैंने, P पॉइंट पर लिख दिया, या P पॉइंट पर कितना आएगा, वर्क डन W, W कहां से, इंफिनिटी से P पॉइंट तक, डिवाइड बाई Q नॉट, या इसी वर्ड को ये कह सकते हो वर्क एक्सटर्नल, ध्यान रखना है, वर्क क्या है, एक्सटर्नल डिवाइड बाई Q नॉट, ये ध्यान रखना है, ठीक। क्योंकि ध्यान रखना ये एक्सटर्नल इसलिए रहेगा क्योंकि इसके कारण फोर्स थोड़ी लगा रहे, ये तो अपने आप भगाएगा, और ये तो रिपल करेगा, फिर हम क्या कर रहे हैं, तो जो हम डिटरमाइन कर रहे हैं वो अगेंस्ट कर रहे हैं, इसलिए V एक्सटर्नल। तो सिंपली लिखोगे तो क्या आएगा, V इक्वल टू W ओवर Q नॉट, ये ध्यान रखना है, ये बार बार फॉर्मूला मिलेगा, याद रखना है। इट इज स्केलर क्वांटिटी, ये ध्यान रखना है, क्योंकि वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, देन पोटेंशियल मस्ट बी आल्सो स्केलर क्वांटिटी। एक चीज, वर्क का यूनिट बताओ बेटा, जूल, अपॉन चार्ज का यूनिट बताओ, कूलम, तो इसका क्या बन गया, जूल पर कूलम। ये 2010 में सीबीएसई में पूछा है, और आई थिंक 15 और 16 में से भी दोबारा किसी बार पूछा है सीबीएसई में, यूनिट पूछा है कि बताइए ये यूनिट किसका है, क्या लिखा हुआ था, जूल कूलम -1, बोले ये यूनिट बताओ किसका है, अच्छे बच्चे भूल गए। चलिए फिर आगे, स्केलर क्वांटिटी याद रखना है, यूनिट याद रखना है। यहां मैंने एक बात कही है चार्ज की, कि स्पीड क्या बचे बेटा, डेफिनेशन में नहीं आती है, अलग से है, स्पीड मस्ट बी सेम, एक तो ये याद रखना है, दूसरा याद रखना है फोर्स मस्ट बी कंजर्वेटिव, तो ये कंजर्वेटिव है इसलिए चाहे इस रास्ते से लाओ, इस रास्ते से लाओ, चाहे इस रास्ते से लाओ, किसी भी रास्ते से लाओ, तो ये नीचे मैं सामने से एक बार हट जाता हूं तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए वीडियो में थोड़ा सा ये मैं यहां से इसे 1 मिनट हटाऊं, ये हल्का सा नीचे रह गया है, यानी जो लास्ट में यहां के बाद में टर्म लिखा है मैंने, ये लिखा है V इक्वल टू W ओवर Q नॉट, ये लिखा है, यूनिट क्या आएगा बेटा, जूल पर कूलम, और क्या बताया, स्केलर, ठीक है, इतनी सी बात कहेंगे। स्पीड क्या रहेगी इसकी, कांस्टेंट, क्योंकि एनर्जी चेंज नहीं होनी चाहिए। ये वर्क फोर्स क्या रहेगा, कंजर्वेटिव, ठीक है, तो वही मैंने ये लिख दिया। चलिए अब लेता हूं इसी का, तो ये आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब बात करते हैं, वर्ड आता है जो आपने पढ़ा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि ये पूरा नहीं हुआ अभी, ये तो तब होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ते हैं। देखिए मैंने कहा सपोज टेस्ट चार्ज हमारा Q नॉट इनफाइनाइट पॉइंट पर रखा हुआ है ये, और पॉइंट चार्ज मेरा Q पॉइंट O पर रखा हुआ है बेटा, क्लियर। व्हेन Q नॉट चार्ज एट इनफाइनाइट मींस इसकी लिमिट के बिल्कुल बाहर है, तो एट ए पॉइंट वर्क एट इंफिनिटी मस्ट बी 0, कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा।
और जब यहां कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा तो हमने तो अभी पढ़ा कि वर्क डन को ही तो पोटेंशियल कहते हैं, वर्क डन को पोटेंशियल कहते हैं, तो पोटेंशियल एट इंफिनिटी मस्ट बी जीरो। यानी यहां लिखा मैंने पोटेंशियल एट इंफिनिटी इक्वल टू जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड पढ़ा रहा, ठीक है। चलिए हमने क्या किया, इनफाइनाइट से इस पॉइंट को बात कर रहे थे कि जब ये क्यू चार्ज रखा है जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, क्योंकि इस तो रिपल करेगा। क्यू नॉट चार्ज को इस पी पॉइंट तक हम लेकर आए, ठीक, और पी पॉइंट तक लाए तो यहां पर पोटेंशियल कितना कहेंगे, पोटेंशियल एट पी, वीपी, कितना, वीपी, और यहां से यहां तक का वर्क डन कितना होगा, वर्क एट पी पॉइंट, वर्क एट पी पॉइंट, क्या, पी पॉइंट। तो यहां तक का वर्क डन कितना फाइंड किया था अभी, अब पोटेंशियल, सॉरी यहां कितना फाइंड किया था, यहां से यहां तक लाने में वर्क कितना हुआ, W, कहां से, इंफिनिटी से कहां तक, पी पॉइंट तक, किसको लेकर आए थे, क्यू नॉट चार्ज को, समझ रहे ध्यान से। चलो अब मुझे क्या करना है, ये वर्क डन और ये वर्क डन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा वर्क एट पी पॉइंट माइनस वर्क एट इंफिनिटी पॉइंट डिवाइड बाय क्यू नॉट। बोले सर ये क्या कर दिया, अरे देखो वर्क इनफाइनाइट पर कितना था, जीरो, वर्क फाइनल पॉइंट पी पर कितना हुआ, सपोज WP लिख दिया, वर्क एट पी, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दो, फॉर्मूला होता है हमेशा फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, तब क्या कहते हैं, डिफरेंस। मैं अभी वर्क का डिफरेंस निकाल दूं, वर्क एट पी माइनस वर्क एट इंफिनिटी अपॉन क्यू नॉट, क्लियर। और इसी को बेटा क्या कहेंगे, कैसे लिखेंगे, मैं थोड़ा अलग अलग लिख दूं, कैसे देखो, और इसे W एट P ओवर क्यू नॉट माइनस W एट इंफिनिटी ओवर क्यू नॉट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो और देखो उल्टा ही लिखूंगा इसे, W ओवर Q पोटेंशियल एट P, क्या था फॉर्मूला, V इक्वल टू W ओवर Q, यही था ना। चलो एक्सटर्नल तो चल ही रहा है, तो एक्सटर्नल तो है ही, लेके आ रहे। चलो मैंने कहा देखो इस वाले पहले वाले मैं उल्टा चल रहा हूं, मैंने कहा वर्क इंफिनिटी से P तक अपॉन क्यू नॉट, चलिए आगे, वर्क एट P माइनस वर्क एट इंफिनिटी अपॉन क्यू नॉट, ऐसे लिख सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन, मैंने इसको भी अलग अलग लिखा, वर्क एट P अपॉन वर्क क्यू नॉट माइनस, अलग अलग। आगे चलो, वर्क अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज को V, तो मैंने इसको लिखा P पॉइंट वाले को VP माइनस V इंफिनिटी W अपॉन Q, ये लिखा, और ये कितना है, जीरो। तो V पोटेंशियल एट P माइनस जीरो इक्वल टू क्या लिखेंगे इसको, W इंफिनिटी टू P अपॉन Q, और इसको का क्या कहेंगे बेटा, V, क्या कहेंगे, V, और केवल P का बचा ना, P पॉइंट का बचा, पोटेंशियल डिफरेंस, ये यानी जिसे VP कहा, P नहीं भी लिखोगे तो चलेगा क्योंकि एक ही वर्ड रह गया, और वो क्या आ गया, W इंफिनिटी टू P ओवर क्यू नॉट, ये देखिए। तो हमने अभी पिछली वाली डेफिनेशन में एक वर्ड निकाला कि W ओवर क्यू नॉट इक्वल टू V होता है, ये फॉर्मूला कॉमन हो गया बोलते बोलते, लेकिन एक्चुअल में जो वर्ड मीनिंग है वो वर्क डन इंफिनिटी से P तक का है, क्यू नॉट चार्ज को लाने में है, जिसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस। तो डिफरेंस कैसे निकाला, फर्स्ट पॉइंट इनफाइनाइट पॉइंट और P पॉइंट सेकंड दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी ये निकाला मैंने डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों के बीच का डिफरेंस निकाला, वही है, इसे कहेंगे बेटा पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपको न्यूमेरिकल में, क्वेश्चंस में
हमेशा एक वर्ड मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस। अरे होता ही पोटेंशियल डिफरेंस है, केवल पोटेंशियल नहीं होता। अरे पता कैसे चलेगा? जब तक ये जीरो नहीं है तब तक ये कितना ज्यादा है। दो के बीच में कंपैरिजन। गर्मी कब होती है? जब ठंडा होता है। ठंड कब लगती है? जब गर्मी होती है। तो जब दो अलग अलग पॉइंट्स के बीच में अंतर नहीं होगा तब तक हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को नहीं पता कर सकते। तो पोटेंशियल वर्ड क्या है? मेरे में कितना पोटेंशियल है, आप में कितना पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल आपका मेरा कैसे पता चलेगा? अरे मेरे और आपके बीच में कंपैरिजन तो होगा। तो कंपैरिजन किया इसके और इसके बीच में, वो कंपैरिजन, वो डिफरेंस को कहेंगे क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड पोटेंशियल की तरह भी यूज होता है और पोटेंशियल डिफरेंस, एक्चुअल वर्ड यही है पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन हमेशा इनफाइनाइट पर, हमेशा जहां से स्टार्ट करते हैं दैट इज ऑलवेज जीरो। वो हमेशा वहां जीरो होता है, इसीलिए कभी उसको इग्नोर करते हैं या फिर मतलब कॉमन लैंग्वेज में कभी डिफाइन नहीं करते, बट इट हैपेंस। समझ गए? पहले मैंने ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, इससे ये किया, सीधा ये लिखा। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? अब चलिए आगे चलते हैं। तो इसी कंटेंट को मैं आगे बढ़ाता हूं और अगला चलिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज Q, और इस Q से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर टेस्ट चार्ज Q0 रखा। इस Q0 को इनफाइनाइट से P पॉइंट तक लाने में वर्क करना होगा। मैंने यहां लिखा, देखो ये ऐसे, इसका नाम है वर्क। कहां से? इनफाइनाइट से और P पॉइंट तक करना पड़ेगा। इधर लिखे आना, ठीक है? चलिए, यहां एक जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन थी वो क्या थी? V इक्वल टू W, इनफाइनाइट से कहां तक? P पॉइंट तक, डिवाइड बाई Q0। ये लिख लेता हूं, काम आएगा क्योंकि ये पोटेंशियल की डेफिनेशन है। चलिए, अब देखिए, एक बात समझना बड़े आराम से। मैंने एक वर्ड कहा था कि इनफाइनाइट पॉइंट से P पॉइंट तक लेकर आते हैं, तो चाहे सीधा एक ये रास्ता ले लो, चाहे सीधे रास्ते से आ जाओ, और चाहे इधर से टेढ़े रास्ते से आ जाओ, वर्क रिमेन सेम, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स लगा हुआ है। कंजर्वेटिव फोर्स है, इसलिए वर्क रिमेन सेम। तो क्या P पॉइंट पर अगर मैं एक बार ये मान लूं कि सपोज Q0 चार्ज बेटा यहां रखा है, मान सकते हैं Q0 चार्ज यहां रखा है, यहां से इसको शिफ्ट करके आप इधर ले गए। वर्क कहां से स्टार्ट किया? P से। कहां तक लेके गए बेटा? इनफाइनाइट तक। ये वर्क और ये वर्क बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल। ये वर्क किसने किया? इस चार्ज ने किया, क्योंकि ये चार्ज इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा तब बाहर तक फेंकेगा इसको। ये किसने किया? एक्सटर्नल एजेंसी ने किया। मान लो मैंने किया, मैं उठाकर लेकर आ रहा हूं, ठीक। और जो एक्सटर्नल एजेंसी का वर्क है, ये वर्क इन्फिनिटी टू पॉइंट एक्सटर्नल एजेंसी का है, इसी को पोटेंशियल कहते हैं। तो ये मैंने दो तरीके बताए हैं, हम दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे। एक तो है कि मैंने कहा Q0 को इनफाइनाइट से उठाकर बेटा P पॉइंट तक लाना है, एक तो ऐसे कर सकते हैं। दूसरा ये कर सकते हैं, मान लिया क्योंकि यहां तो पोटेंशियल कितना है? जीरो। जब पोटेंशियल ही जीरो है तो वर्क कौन करेगा? वर्क कितना है? जीरो। ये भी मान सकते हैं क्योंकि इनफाइनाइट का मतलब है बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है, इसका यहां कोई फोर्स नहीं लगेगा, और जब यहां फोर्स ही नहीं लगेगा तो फिर वर्क कैसे होगा? इसलिए एक रास्ता और है, वो क्या है? मान लेते हैं कि ये टेस्ट चार्ज हमारा यहां रखा है, तो अब ये तो पता है कि ये तो पास पास आ गए, दोनों पास पास आके बेटा, तो ये कर लिया मैंने कहा ये कितनी डिस्टेंस पर है? ये डिस्टेंस कह दिया O से P तक का कितना कह दिया मैंने? R कह दिया। यहां लिख देता हूं, आपको पता रहेगा ना, OP इक्वल टू R। R डिस्टेंस पर है, तो R डिस्टेंस पर
दोनों के बीच इसमें फोर्स लगाएगा, ये फोर्स लगेगा यहां, और फोर्स कितना लगेगा ये भी लिख देता हूं, F इक्वल टू के क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर। जब क्यू नॉट चार्ज बेटा यहां रखा है, क्यू चार्ज यहां रखा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस आर है, तो दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा, ये इक्वेशन इसे 1 कह देता हूं, आगे काम आएगी, इसीलिए लिख दिया मैंने। अब यहां इसीलिए क्योंकि दोनों के बीच में फोर्स अप्लाई हो गया, ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं, या तो मैं ये कह देता हूं कि यहां से इनफाइनाइट तक पहले वर्क डन निकाल दूं, फिर माइनस कर दूंगा, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में ये नेगेटिव होगा, यानी ये वाला क्या होगा, नेगेटिव, ये क्या होगा, पॉजिटिव। तो हमें पॉजिटिव नहीं निकालना, हमें तो ये निकालना है। चलो चलते आगे, मेथड बताया है। चलो फिर देखो, अब सुनो, मान लेते हैं कि यहां आर डिस्टेंस पर जब चार्ज ये क्यू नॉट था, तो इस पर फोर्स लगा F इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अब यहां से सपोज यहीं से डिस्प्लेस होकर गया छोटा सा डिस्टेंस, कितना छोटा सा डिस्टेंस, देखो मान लिया, दिखाई दे रहा है क्या, मान लिया मैंने बेटा, इसको कह दिया कितना, dr डिस्टेंस, कितना, dr डिस्टेंस, ठीक है। dr डिस्प्लेस होने में कितना वर्क होगा, मैंने लिखा वर्क डन बाई क्यू, जो पॉइंट चार्ज है उसके कारण वर्क डन, ऑन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट पर, इन डिस्प्लेस कितना, dr। तो बताओ फॉर्मूला क्या है, dw इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। चलो देखो, डॉट लगा लिया, ये होता है फॉर्मूला, तो F dr cos 0, 0 क्यों, क्योंकि इसके कारण फोर्स भी इधर ही लगा हुआ है, यहां जो फोर्स का डायरेक्शन है वो यही तो है, इधर, और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही। चलिए आगे, F डॉट dr लगा दिया मैंने बेटा, आगे चलते हैं, आगे क्या चलता है, ये लिख लो सीधा इसे, F dr इक्वेशन नंबर, अब इसको 2 कहना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि इधर मैंने 1 लगा दिया है, देख लो वीडियो बंद, सामने दिख रहा है पूरा, हाँ दिख रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैंने एक बड़ी सिंपल सिटी बताई। चलो अब एक काम करते हैं बेटा, हाँ देखो, ये फोर्स जैसे जैसे डिस्टेंस आगे जाएगा वेरी करेगा, फोर्स कांस्टेंट तो है नहीं, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कैसे चलता जाएगा, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं कि P पॉइंट से इनफाइनाइट तक कितना वर्क होगा, टोटल वर्क डन, कहां से बेटा, फ्रॉम P पॉइंट से और कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो क्या करूंगा इसे, इंटीग्रेट, मतलब W इक्वल टू dw इक्वल टू इंटीग्रेट F डॉट dr, कहां से स्टार्ट किया मैंने, P पॉइंट से, P का डिस्टेंस कितना है बेटा, R, और कहां तक लेके जाऊंगा, इनफाइनाइट तक, समझ गए, P से कहां तक लेकर जा रहा हूं, इनफाइनाइट तक, P से, सॉरी P की डिस्टेंस कितनी है, R से इनफाइनाइट, F डॉट dr। अब इसमें F भी वेरिएबल आ गया, dr भी वेरिएबल आ गया, समझ गया ना, क्यों, क्योंकि F जैसे जैसे चेंज होगा डिस्टेंस बढ़ेगी, चेंज होगा, कांस्टेंट तो है नहीं, तो F को यहां कांस्टेंट नहीं ले सकते, तो फिर क्या करना है, F का वैल्यू लगा लो, मतलब इक्वल टू R से लेकर कहां तक आ गए, इनफाइनाइट तक, और F का वैल्यू देखो कितना है, K क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर, और ये dr, बड़ा सिंपल तरीका, आराम से R से लेकर इनफाइनाइट तक। अब देखो क्या कांस्टेंट है, K कांस्टेंट है, क्यू नॉट कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है, R कांस्टेंट नहीं है, इसी की वजह से तो फोर्स चेंज हो रहा था, नहीं तो पहले यहीं से कांस्टेंट बाहर ले लेते। तो देखो बचा क्या बेटा, K आ गया और Q नॉट भी आ गया, दोनों को बाहर ले लिया,
इंटीग्रेट लगाया, आर टू इंफिनिटी कह दिया बेटा 1/r² और dr। क्लियर क्लियर। चलो आगे फिर ये वर्क डन कहां से निकाल रहा हूं मैं, यहां शॉर्ट कैसे लिख दिया, वर्क डन कहां से लिया मैंने, P से लेकर इनफाइनाइट तक लिखना पड़ेगा। वर्क कहां से बेटा, P टू इंफिनिटी निकाल रहा हूं पहले, वर्क इक्वल टू P टू इंफिनिटी निकाल रहा हूं पहले, ये तो मेन खेल है। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो देखो यहां दिख रहा होगा इंटीग्रेशन स्मॉल r टू इंफिनिटी और 1/r² dr इक्वल टू, देखो बेटा इंटीग्रेट लगाते हैं, r की पावर नीचे है ऊपर जाके -2 इंटू dr हो गया। फिर आगे देखो एक और बेटा, इसको क्या कहेंगे, r की पावर -2 + 1 ओवर -2 + 1, ऐसा ही होगा क्या, यहां लिमिट आ जाएगी, क्या आएगी, r से लेकर इंफिनिटी तक। ये क्या बन गया, देखो एक बार दिख रहा होगा वीडियो में आराम से, ये बन गया बेटा माइनस बाहर ले लिया और 1/r आ गया, मुझे लग रहा है एक पावर, ठीक है। और ये r टू इंफिनिटी, चेक करो, देखो मैं वीडियो में दिख रहा है क्या पूरा, -2 + 1 थोड़ा सा नीचे कटा है, हाँ देखो मैं एक बार नीचे वाले को हटा देता हूं, देखिए 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 क्या किया, देखो यहां से सॉल्व कर लो इसे, थोड़ा सा यहां से सॉल्व कर दो, तो ये कितना आएगा, यहां मैं देखो सीधा लिख रहा हूं बेटा इसे, चलो यहां लिख लेते हैं, वर्क P से इनफाइनाइट तक बेटा इक्वल टू Q0 सेम, ये देखो ये बन गया बेटा, इसे लिख रहा हूं r की पावर -2 + 1 ओवर -2 + 1, लिमिट आ गया r टू इंफिनिटी। चेक कीजिए दोबारा से, k एज इट इज बेटा, Q0 एज इट इज, और ब्रैकेट में देखो इसे, ये माइनस बचेगा नीचे, मैंने माइनस तो ये लिख दिया, ये बचा r की पावर -1 ऊपर, लिमिट अभी r से लेकर इनफाइनाइट तक ही रहेगा। इस माइनस को यहां बाहर ले आता हूं तो माइनस आ गया, k आ गया बेटा, Q और Q0 कह दिया, और ब्रैकेट में बचा इस r डैश को नीचे ले आओ, r की पावर -1 को, तो ये 1/r आ गया, r से लेकर इनफाइनाइट तक, लिमिट अप्लाई करो, -k एज इट इज, ये बढ़ रहा है, Q और Q0 बार बार आ रहा है, अपर लिमिट 1/∞ माइनस लोअर लिमिट 1/r। ठीक, एक काम कर लेते हैं, क्या किया, देखिए क्या किया, -2 + 1 -2 + 1 r डैश की पावर -1, ये -1 बचा, मैंने इस -1 को इस पावर को नीचे ले आया तो ये तो प्लस पावर हो गई, और ये माइनस एज इट इज रखा, अपर लिमिट -1/∞ माइनस लोअर लिमिट, माइनस और माइनस प्लस हो गया 1/r, ये वाला टर्म तो 1/∞ होता है 0, तो केवल 1/r बचा, 1/r को इसमें मल्टीप्लाई किया तो k Q0 ओवर r। इसको बेटा इक्वेशन नंबर कह देता हूं मैं 3, क्योंकि 2 उधर दे रखा है, 2 उधर दे रखा है। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा है बेटा कि यहां से P पॉइंट से इनफाइनाइट तक वर्क किसने किया, इस चार्ज ने किया, हमें पोटेंशियल निकालना इसके कारण, तो इस चार्ज ने किया है, जबकि डेफिनेशन क्या कहती है हमारी, वर्क इन्फिनिटी टू P, इन्फिनिटी टू P, तो इन्फिनिटी टू P कौन सा है, ये कौन सा है, नेगेटिव, हमने ये वाला निकाल दिया, कितना है, पॉजिटिव, तो फिर ये क्या होगा, ये कितना होगा, बट V इक्वल टू कितना होता है, W इंफिनिटी टू पॉइंट P अपॉन Q0 इंफिनिटी टू P, जो किसके बराबर होगा, वर्क P टू इंफिनिटी और ये माइनस अपॉन Q0। अरे ये और ये दोनों क्या है, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक, तो क्या कर दिया, WP टू इंफिनिटी जो ये निकाला, इसके आगे माइनस लगा दिया, क्या करना पड़ेगा, ये मैंने कितना निकाल दिया, 1 मिनट, कुछ गड़बड़ है क्या, इंफिनिटी टू ए पॉइंट, देखो कितना आ रहा है, KQ ओवर, देखिए
इक्वेशन नंबर 3 हमारा क्या शो कर रहा है कि हमने वर्क डिटरमाइन किया P से लेकर इनफाइनाइट तक, P से लेकर इनफाइनाइट तक ठीक है, जबकि हमें करना क्या था, इनफाइनाइट से P तक करना था, क्योंकि हमारा जो डेफिनेशन है वो तो ये कहता है इनफाइनाइट से P तक लाने में। तो ये वर्क तो हमने अपोजिट कर दिया, तो क्या लिख देंगे यहां, दिस वर्क इज opposite to external agency, या ये कहूं बेटा सीधा इसको, अपोजिट टू W इंफिनिटी टू P, ये इंफिनिटी से लेकर P तक है, इसके अपोजिट वर्क कर दिया, इधर जा रहा है ना, देखो ये वर्क इस समय इधर जा रहा है, इसको Q नॉट का तो पॉजिटिव है, लेकिन एक्सटर्नल एजेंसी की क्या है, अपोजिट। तो दिस वर्क इज अपोजिट टू W इंफिनिटी टू P, सो इसलिए क्या करूं, इसे क्या लिख दूंगा, ये क्या लिखा जाएगा, W P टू इंफिनिटी इक्वल टू माइनस, और क्या है, K Q नॉट ओवर R। ये आ गया, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं रखना है, ये वर्क डन हमने यहां से इधर निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए किया था बेटा, यहां तो dr मान लेंगे क्योंकि पता है यहां डिस्टेंस r है, यहां कैसे मानते हैं, इसीलिए किया था। तो हमने ये निकाल दिया, जो ये वैल्यू आया मेरे पास में, ये इसको माइनस रख देंगे, क्या माइनस रख देंगे, तो मैंने माइनस रख दिया, K Q नॉट ओवर R, ठीक है, ये माइनस तो हमने डिटरमाइन कर लिया है, बट फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला तो हमारा ये कहता है, थोड़ा थोड़ा जगह मेरे को यहां चाहिए, मैं लिख लेता हूं, दिखेगा आपको, दिखेगा आराम से, क्या कहता है कि W इंफिनिटी से लेकर P तक ये फाइंड करना था, इसका अपोजिट, तो ये लिखा है ना जो नेगेटिव में, ये माइनस, और W P से लेकर इन्फिनिटी से, तो अब ये माइनस है और ये माइनस ऑलरेडी, अरे ये माइनस क्यों आया, क्योंकि ये वर्क डन हमने इस चार्ट से निकाला था, इधर कितने निकालना थोड़ी इधर था, निकालना तो इधर था, तो ये कितना बन गया बेटा, K Q नॉट ओवर R, क्या आ गया, वर्क आया है, हमें क्या निकालना था, पोटेंशियल, क्या निकालना था, पोटेंशियल, तो पोटेंशियल V इक्वल टू क्या आएगा, W, ये वैल्यू देखो, ये जो लिखा है ऊपर, ये वाला क्या आएगा, P से इंफिनिटी तक K Q नॉट ओवर R, और देखो यहां नीचे लिख दिया बेटा मैंने Q नॉट, तो देखो ये Q नॉट और ये Q नॉट कैंसिल हो गया, ये Q नॉट और Q नॉट कैंसिल हो गया, तो ये बच गया V इक्वल टू KQ ओवर R, ये निकालना था, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज V इक्वल टू KQ ओवर R, दिस इज द मेन पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो पोटेंशियल इसके कारण तभी निकलेगा जब एक्सटर्नल एजेंसी का वर्क निकालना पड़ेगा, ध्यान रखना है, एक्सटर्नल एजेंसी का वर्क निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखिए, एक बार स्क्रीनशॉट करो, मैं इसे और ब्रीफ कर दूं, दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, जो मैं बात कर रहा था कि पोटेंशियल कहां निकालना है, इंफिनिटी से लेकर P पॉइंट तक, ये वाला, ये वर्क निकालना है। तो आपको दूसरा मेथड मिल सकता है कहीं भी, कोई दूसरे तरीके से, वो ये करते हैं क्या, एनसीईआरटी जो करता है कि यहां एक काम किया, पहले dr डिस्प्लेसमेंट मान लिया, इनफाइनाइट को ये मान लिया, इस चार्ज कहां बैठा हुआ है, Q नॉट यहां है, यहां का डिस्टेंस कितना है, ये R डैश है मान लो, ऐसा मान लेते हैं। अब यहां dr डिस्प्लेस इधर करने में वर्क कितना होगा, तो क्या आएगा, वर्क कितना आएगा, dw इक्वल टू F डॉट dr आएगा, ठीक है, और ये ऐसे इक्वल टू F dr इंटू कॉस, अब फोर्स किधर लगा है इसका, इधर लगा हुआ है, dr किधर है, इधर है, दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, 180 डिग्री, तो इसे कहा बेटा F dr कह दिया,
ठीक है, ऐसे भी मेथड है, कर सकते हैं आप, इससे भी कर सकते हो। एफ डॉट डी आर आ गया, एफ डी आर cos 180 माइनस 1 होता है, तो ये माइनस आ गया। अब एक काम कर लेते हैं, तो एफ यहां कितना लगेगा, तो देखो क्यू यहां बैठा है, क्यू नॉट यहां बैठा है, तो एफ का वैल्यू होगा के क्यू नॉट ओवर आर डैश का स्क्वायर इंटू डी आर। एफ का वैल्यू ये डिस्टेंस आ गया ना, ठीक है। अब ये तो आ गया बेटा डी डब्ल्यू, लेकिन इनफाइनाइट से यहां तक लाने में वर्क कितना था, तो डब्ल्यू इक्वल टू इन्फिनिटी से लेकर कहां तक है, पी पॉइंट तक है, जिसकी डिस्टेंस कितनी है, आर लगा दिया मैंने। और इसमें से के क्यू नॉट ओवर आर डैश स्क्वायर इंटू डी आर कर सकते हो, मेथड है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आगे जाओ, डब्ल्यू इक्वल टू देखो के क्यू नॉट कांस्टेंट बाहर ले लिया और इन्फिनिटी से लेकर आर तक आ गया बेटा, और ये 1 अपॉन आर डैश को मैंने लिखा बेटा आर डैश की पावर -2 इंटू डी आर। इसे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा, के क्यू नॉट, देखो माइनस चल रहा है, ये माइनस भूल नहीं जाए, ये भूल नहीं जाए, तो इसे सॉल्व कर लो अब आराम से। ये आएगा r की पावर -1 ओवर -1 और ये आ गया इन्फिनिटी टू r, ठीक। इसे सॉल्व कर लो, ये r डैश है, ये सॉल्व करोगे, ये माइनस और यहां माइनस है, तो माइनस से ये माइनस बेटा कैंसिल हो जाता है, तो ये बचता है के क्यू नॉट, और देखो ये बचा 1 अपॉन आर डैश इन्फिनिटी टू r, लगाओ के आ गया, क्यू आ गया, क्यू नॉट आ गया, और ये आ गया अपर लिमिट 1 अपॉन आर माइनस लोअर लिमिट 1 अपॉन इन्फिनिटी, ये 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो ये बच गया, के बच गया बेटा क्यू नॉट ओवर आर। ये क्या आ गया, वर्क डन आ गया, कहां से आ गया, इनफाइनाइट से पी तक, कहां तक, इनफाइनाइट से पी तक, इनफाइनाइट से लेकर पी तक, ठीक है। मेथड है, इधर से भी कर सकते हो, इधर से भी कर सकते हो, किसी तरह से लो, जो इधर से किया है डन हो गया, उसको फिर माइनस कर दो, सीधा है, एक ही बात, क्योंकि इधर लेके आएंगे, ये है मेन, तो कौन सा है, ये है, मेथड है, ये मिल सकता है आपको, प्रीवियस वाला मिल सकता है, ठीक है। चलिए आगे, तो पोटेंशियल क्या कहता है, V इक्वल टू डब्ल्यू इन्फिनिटी टू P डिवाइड बाई क्यू नॉट होता है, तो कितना आएगा देखो, के आएगा बेटा क्यू नॉट ओवर आर, और ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, के क्यू ओवर आर कह दिया बेटा, जिसको क्या लिखोगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर, ये पोटेंशियल आ गया। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू पोटेंशियल कहां निकाला है बेटा, एट पी पॉइंट पर जहां आर डिस्टेंस है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर, ये फॉर्मूला मिल गया हमें, इसी के लिए पसीना बहा रहे थे इतनी देर से, क्लियर। तो मेथड है, मेथड आप दोनों में से कोई भी अडॉप्ट कर सकते हो बिल्कुल अच्छी तरह से, मेरा मतलब था दोनों तरीके से समझाने का, तो आराम से, ठीक है। चलिए अब देखिए छोटी छोटी बातें और कर लेते हैं। अब देखिए कुछ फैक्टर्स हैं, तो क्या फैक्टर्स हैं, देखो, इफ क्यू पॉइंट चार्ज, सॉरी, if point charge is negative, पॉइंट चार्ज अगर नेगेटिव है तो V क्या आएगा बेटा, नेगेटिव। इफ पॉइंट चार्ज इज पॉजिटिव तो V क्या आएगा, पॉजिटिव, ये ध्यान रखना है। V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, एक ही चीज ध्यान रखना है हमेशा। पॉइंट चार्ज मान लो ये रखा है मेरा Q, अब यहां से जैसे 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 R जाओगे वैसे वैसे ये वैल्यू चेंज होगा, क्योंकि क्या है, वैल्यू इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R, यही है ना फॉर्मूला, ठीक। तो V, एक और चीज लिख दूं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q होगा, चार्ज ज्यादा पोटेंशियल ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा पोटेंशियल कम, ठीक है। चलिए आगे, तो ये मान लिया। अब Q का वैल्यू और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, ये वैल्यू कभी कभी मीडियम चेंज हो जाए तो चेंज हो सकता है, इसीलिए मैंने लिखा है 1 अपॉन R में, तो इसका ग्राफ कैसे लोगे, वो यहां छोटा सा शो कर दो, इस तरह से चला जाएगा आराम से, यहां तो आ गया R, इधर आ गया V। अगर इसी ग्राफ को ये शो करना चाहो
कहीं ये कह देता है v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, तो यहां तो लिया 1/r बेटा, और इधर कहा v, तो ग्राफ सीधा ही आ जाएगा, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, ये लीजिए। तो ये ग्राफ भी सही है, ये ग्राफ भी सही है, क्लियर? ठीक है, ये बातें सारी सामने जो लिखी है ध्यान रखना है इनको, ये बड़े काम की चीजें हैं जो पोटेंशियल से रिलेटेड है। ठीक है, चलो, तो जैसे जैसे आगे जाएगा धीरे धीरे पोटेंशियल क्या होगा, धीरे धीरे ड्रॉप होगा। क्या होगा? ड्रॉप होगा। अरे इसीलिए तो कहा था कि इन्फिनिट पर क्या हो जाएगा, एट इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो, एट इन्फिनिटी जीरो। तो सबसे पास जैसे जैसे पास आएगा वैसे पोटेंशियल ज्यादा होगा, आगे जाएगा तो ड्रॉप होता हुआ चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, ये सब लिख लिया, ये पता है, पहले कह दिया मैंने, स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट क्या है, जूल पर कूलम है, फोर्स कौन सा काम करता है, कंजर्वेटिव। ठीक है, चार्ज का मूवमेंट क्या होगा, चार्ज मूवमेंट एट कांस्टेंट एक्सीलरेशन, या ये कहें एट जीरो एक्सीलरेशन, ZER। जीरो एक्सीलरेशन का मतलब है कांस्टेंट स्पीड। ये नहीं कर सकते कि एक साथ चार्ज को फेंक दिया, ऐसा नहीं कर सकते, स्लोली। क्यों? क्योंकि एनर्जी चेंज नहीं होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी शुड नॉट बी चेंज। ये सारे फैक्टर हैं पोटेंशियल के जो हमने पीछे अभी तक पढ़े हैं, क्लियर? अब चलिए एक दो एग्जाम्पल करते हैं। दो चार्ज ले लेते हैं, देखो, वन इज पॉजिटिव चार्ज, पॉइंट चार्ज, सेकेंड वन इज नेगेटिव चार्ज। सपोज इस पॉइंट चार्ज से, और बेटा ये कोई दो पॉइंट मान लिए मैंने, इस पॉइंट को नाम ले लिया ए, इस पॉइंट को नाम ले लिया बी, ठीक, और यहां कोई चार्ज रखा हुआ है Q0। ठीक है, तो अब एक काम करना है, बी से ए तक आना है इसको, तो ये तो वर्क डन होगा। तो वर्क कितना होगा, कहां से, बी से ए तक, किसको लाने में होगा, Q0 को। उसको क्या कहेंगे, पोटेंशियल, किसके बीच का, ए बी का, क्या कहेंगे, ए बी का। और कैसे लिखूंगे इसे बेटा, इसे लिखेंगे पोटेंशियल एट, देखो कहां इनिशियल पॉइंट ये है बी, इधर लेकर आ रहा हूं, ध्यान रखना है, डायरेक्शन बना देता हूं ऐसे, बी से ए तक ऐसे, ठीक। चलो आगे, तो क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट पोटेंशियल। अगर इस Q0 चार्ज को बी से ए पर ले जाते हो, बी से ए पर ले जाते हो, तो बी पर डिस्टेंस ज्यादा है, पोटेंशियल एट बी, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, V इक्वल टू के क्यू ओवर आर। अरे आर किसका ज्यादा है, बी का ज्यादा है, तो इसके कारण पोटेंशियल यहां कम होगा, इधर ज्यादा होगा, ठीक, ज्यादा ये है। तो क्या कंडीशन आएगी, V पोटेंशियल एट ए, यहां लिखो ना, पोटेंशियल एट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बी, ए में से बी ज्यादा है, ए से बी माइनस किया तो ये क्या वैल्यू आएगा बेटा, पॉजिटिव। क्या आएगा, पॉजिटिव। तो अगर Q0 चार्ज को बी से ए तक ले जा रहे हैं, तो जो भी हमारा पोटेंशियल आएगा, जो भी हमारा ये वर्क डन आएगा, ये देखो वर्क आएगा, क्या आ गया, ये वर्क, और वर्क क्या आएगा, ये वर्क क्या होगा, वर्क क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, समझ गए ना, बी से ए तक लाना है, ठीक। दूसरा जाओ, इधर आ जाओ, मान लो ये चार्ज नेगेटिव है, यहां मैंने कहा पोटेंशियल ए, यहां कहा बी, वही चार्ज क्या है, Q0। अब Q0 को बी से ए तक ले जा रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो अब यहां पोटेंशियल देखो, पोटेंशियल एट ए इक्वल टू के क्यू ओवर आर, यहां तक का ये वाली डिस्टेंस ऐसे, ठीक है। लेकिन ये पास में, ये दूर है, दूर है,
तो पोटेंशियल कम होगा, लेकिन नेगेटिव में कम होगा क्योंकि ये नेगेटिव पोटेंशियल है, नेगेटिव पोटेंशियल। तो यहां क्या आएगा, पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी, ये माइनस ये करना है, और ये क्या आएगा यहां बेटा ध्यान रखना नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि देखो ये ध्यान रखना है, इस माइनस साइन के होने से पोटेंशियल एट बी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट ए बन गया। बोले सर ये क्या कर दिया आपने, कर क्यों दिया, क्योंकि चार्ज नेगेटिव है, नेगेटिव है तो पोटेंशियल ए पर कितना होगा, ए पर कितना होगा के क्यू ओवर आर, और ये ए का लिया, ये माइनस यहां तक का, यहां तक की डिस्टेंस मान लो कितनी है, मैंने कहा b है, तो ये कितना आएगा b इक्वल टू के क्यू ओवर आर, b कह दिया बेटा इसे, ये माइनस का है, आर भी ज्यादा है तो ये कम हो गया, माइनस में कम ज्यादा होता है, माइनस में ज्यादा छोटी वैल्यू होती है, तो ये क्या आएगा, ये एग्जांपल है आपकी एनसीईआरटी का, आप चेक कर लें, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, अगला एग्जांपल देखो, बहुत आता है एनसीईआरटी से और उसमें बोर्ड में आता है। सपोज बेटा एक चार्ज पॉइंट चार्ज ये है जिसका नाम है Q1 और सपोज कितना है 1 कूलम कह दिया। दूसरा यहीं से ये पॉइंट ले लिया और इस पर चार्ज बैठा है Q2 और इसको कह दिया 3 कूलम, ठीक है। चलो अच्छी बात है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, मैंने कह दिया सपोज बेटा 20 सेंटीमीटर, मान लिया ऐसे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्वेश्चन पूछता है हमें कि बेटा इनके बीच का कोई पॉइंट ऐसा बताओ जिस पर पोटेंशियल कितना होगा, 0, कितना होगा 0। तो अब ये नहीं पता ना कि ये V जो पॉइंट P ले रखा है, ये P पॉइंट ले रखा है, इस पॉइंट को नाम A दे दिया, इस पॉइंट को नाम B दे दिया, तो ये नहीं पता कि ये P पॉइंट A से कितनी दूर है, B से कितनी दूर है। तो यहां पोटेंशियल 0 हो, लेकिन 0 होगा कब, अभी क्वेश्चन सही नहीं लिखा मैंने, देखो कैसे, ये चार्ज पॉजिटिव, ये चार्ज पॉजिटिव। एक चीज और देखो थोड़ा सा, देखो इधर मान लो एक चार्ज बेटा ये है Q1, एक चार्ज ये है Q2, एक चार्ज ये है Q3, समझ रहे ध्यान से, ये चार्ज नेगेटिव है। यहां मैंने मान लो कोई पॉइंट P ले लिया, यहां से डिस्टेंस R1 कहा, यहां से डिस्टेंस R2 कहा, यहां से डिस्टेंस बेटा R3 कह दिया, और ये पूछा कि बताओ इस P पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला क्या है, V इक्वल टू के क्यू ओवर आर, ये तो कॉमन फॉर्मूला है। फर्स्ट चार्ज के लिए कितना आएगा, V1 इक्वल टू के क्यू वन ओवर R1, सेकेंड का कितना आएगा, V2 इक्वल टू के क्यू ओवर R2, थर्ड का कितना आएगा, V3 इक्वल टू के क्यू ओवर R3, लिखनी है माइनस आएगा, ठीक है। और क्या है ये, स्केलर है, स्केलर है तो डायरेक्शन का कोई मैटर नहीं है, तो फिर इस पॉइंट पर नेट पोटेंशियल कितना होगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी सबको ऐड कर लो तो K कॉमन आ गया, Q1 ओवर R1 प्लस Q2 ओवर R2 माइनस Q3 ओवर R3, ये लो। इसे ये भी कह सकते हो पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। टॉपिक हो गया एक, ठीक है, ये क्या पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो वैसे ही क्या है, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव है तो 0 तो होगा ही नहीं, 0 पॉसिबल है, कब होगा, अगर मैं ये कहता हूं बेटा ये नेगेटिव है, अब पॉसिबल है, ठीक है, अब पॉसिबल है। तो हमने क्या किया पहले बेटा इस क्वेश्चन में, इस एग्जांपल में सेकंड एग्जांपल चले, हाँ, पहले ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण पोटेंशियल पॉजिटिव, इसके कारण नेगेटिव, तभी तो होगा 0, ठीक है। तो देखो V1 इक्वल टू क्या आएगा, K Q1 ओवर R कितनी है, A से P तक, वैल्यू लगा देता हूं, K का वैल्यू कितना होता है 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 का वैल्यू कितना है 1 डिवाइड बाई ये डिस्टेंस कितना है, बोले पता ही नहीं कितना है।
हमने कहा चलो ये डिस्टेंस x है, कितनी x है, तो फिर P से B तक की डिस्टेंस कितनी बचेगी, 20 माइनस x बचेगी क्या, ये तो मैथमेटिक्स है, ठीक। यहां से ये डिस्टेंस कितनी, 20 माइनस x, ऐसा तो कर सकते हैं। चलो तो ये तो आ गया बेटा x, इक्वेशन नंबर 1। V1 फर्स्ट चार्ज Q1 के कारण P पॉइंट पर पोटेंशियल आ गया ये। सेकंड चार्ज Q2 के कारण पोटेंशियल माइनस में होगा, कितना होगा, KQ2 ओवर R BP, B से P तक का डिस्टेंस तो कितना है, माइनस K कितना है, 9 इंटू 10⁻⁴ फिक्स है ये तो। Q2 का वैल्यू कितना है बेटा, 3 डिवाइड बाई, ये माइनस लगा लिया इसलिए जरूरी नहीं है दोबारा लगाना, और ये आ गया बेटा 20 माइनस x, इक्वेशन नंबर 2। बट ये तो ये कह रहा है कि यहां पोटेंशियल कितना होना चाहिए, 0। तो 0 कब होगा, V1 प्लस V2 मस्ट बी इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया बेटा, V1 V2 के दोनों वैल्यू लगा लो, मतलब 0 इक्वल टू, पहले ये वैल्यू लिखो 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 1/x, माइनस ये वाला वैल्यू लिखो 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 3/20 माइनस x कर दिया बेटा। एक काम करता हूं, ये वाला वैल्यू इधर उठा लाता हूं, मतलब मैंने ये तो हटा दिया, ये लगा दिया, इतना मैथमेटिक्स सबको आती है। तो ये तो कट गया बेटा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 इधर मल्टीप्लाई करो x का, तो ये बन गया 3x इक्वल टू, ये कितना बच गया, यहां 1 है ना, 20 माइनस x बच गया, यही बचेगा क्या, ये x भी इधर लिया हो, तो ये आ गया 4x इक्वल टू 20 आ गया, तो x इक्वल टू 5 आ गया। ओ मतलब Q1 से 5 सेंटीमीटर पर होगा, और Q2 से कितनी बची, 5 माइनस, सॉरी यहां से कितनी आ गई है 5, तो ये कितनी बचेगी 15। अब अपने आप देख लो, अरे ये चार्ज 1 है, ये 3 है, 3 गुना ज्यादा है, तो डिस्टेंस भी 3 गुनी लेनी पड़ेगी, ये 5 ओनली, तो इसलिए 1 पर। तो यहां से जब ये 5 आ गया 1 कूलम के लिए, इसका मतलब x कर दिया, क्लियर। ये बन गया क्या, नेट पोटेंशियल और टोटल पोटेंशियल। अगर दो चार्ज के बीच में कोई पॉइंट दे रखा है तो उसके बीच का पोटेंशियल 0, क्लियर। चलिए इसी को और कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट चार्ज Q1 यहां बैठा है, सेकंड चार्ज Q2 यहां बैठा है, दोनों के बीच में हमने ये पॉइंट फाइंड किया, तो ये कितना आया, x इक्वल टू 5, तो इधर इधर कितना बचा 15, यही तो बचा ना, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितना लिया था मैंने 20, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं कि दोनों के बीच में हो, ये पॉइंट बेटा यहां भी हो सकता है, ये पॉइंट यहां भी ले सकते हैं, बोले नहीं ले सकते, बोले सर ये क्या कर दिया, इसलिए बेटा कि देखो ये चार्ज ज्यादा है, डिस्टेंस भी इसके पास में कर दो, तो ये तो बेटा चार्ज भी छोटा है, और डिस्टेंस इतनी और ज्यादा कर दो तो ये इसके बराबर कैसे करेगा, समझ रहे हैं ना भाई, ये चार्ज 1 कूलम है, डिस्टेंस यहां तक इतनी ज्यादा है, तो ये तो पोटेंशियल बहुत कम हो गया, ये चार्ज ज्यादा है, डिस्टेंस पास हो गई, इसलिए इधर नहीं मिलेगा आपको, इधर कोई पॉइंट पर v इज नॉट इक्वल टू 0 नहीं मिलेगा। कहां मिल सकता है, इस छोटे स्मॉल चार्ज की तरफ मिल सकता है, क्योंकि चार्ज छोटा है, डिस्टेंस कम कर दो, चार्ज बड़ा है, डिस्टेंस ज्यादा कर दो। अब मान लो मैंने कहा कि ये डिस्टेंस कितनी है x, तो यहां से पहले v1 इक्वल टू वही k q ओवर x ले लिया, अब यहां से कितनी आएगी v2 इक्वल टू k q2 ओवर 20 प्लस x कहेंगे, यहां बीच में दिया था 20 माइनस x, अब कितना कहेंगे 20, तो ये पूरा प्लस x और आ गया, और ये माइनस। अब फिर से इसको सॉल्व कर लो भाई, v1 प्लस v2 इक्वल टू 0 कर लीजिए आराम से, अब फिर से मिल जाएगा आपको पॉइंट, कितना आएगा जो भी आए, x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे आप इससे आराम से, ठीक है। तो ये क्या किया हमने कि दो पॉइंट चार्ज के बीच में ऐसा पॉइंट जहां हम टोटल पोटेंशियल 0 कंसीडर कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल और लेंगे, बहुत अच्छा सा है, जरूर
देखो ये कहता है सपोज ये रिंग है, स्फीयर नहीं है, और इस रिंग पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अरे तो हमने तो अभी तक ये पढ़ा था कि ये पॉइंट चार्ज Q है, इसके कारण R डिस्टेंस पर पॉइंट P है, यहां पोटेंशियल कितना है KQ ओवर R, ये पढ़ा था, पॉइंट चार्ज के कारण पढ़ा था। अब चार्ज पॉइंट नहीं है, अब चार्ज ये सर्किल में है, और ये कह दिया बेटा कि सर्किल की रेडियस तो ले लो आप, यहां से x डिस्टेंस पर ये पॉइंट P है, यहां पोटेंशियल बताओ कितना होगा। बोले सर अब ये कैसे करें, तो पॉइंट चार्ज तो ऐसे कह नहीं सकते, तो एक मेथड है, बड़ा आराम से प्यार से देखो, यहां एक ऐसा मान लेते हैं पॉइंट चार्ज के बराबर टोटल चार्ज कितना है Q, कितना है Q, ये छोटा सा एक पॉइंट चार्ज के बराबर यहां मान लेते हैं छोटा सा एलिमेंट dl, मानते हैं छोटा सा एलिमेंट dl, जिस पर चार्ज कितना प्रेजेंट है dq, तो ये dq चार्ज हमारे पास में पॉइंट चार्ज का काम कर जाएगा, ये dq चार्ज पॉइंट चार्ज का काम कर जाएगा, तो इस dq के कारण ये लो, अब इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, तो V इक्वल टू K, Q कितना है dq ओवर डिस्टेंस, कितनी आएगी x ये है बेटा, r ये है, तो ये कितना आ गया अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये डिस्टेंस यहां लिख दो r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 1/2 लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं। इस छोटे से एलिमेंट dq के कारण p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड V इक्वल टू K dq ओवर इस डिस्टेंस, रूट की जगह मैंने पावर हाफ लगा दी, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। अब चलो मान लो एक dq ये है, एक dq यहां मान लिया, एक dq यहां मान लिया, एक dq यहां मान लिया, ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे क्या, पूरी रिंग को मान लिया, तो पूरी रिंग पर जितने भी dq बने, मान लो एक dq यहां लिया, तो इसके कारण भी ऐसे आ जाएगा, ठीक, ये भी डिस्टेंस कितना आएगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो पूरी रिंग के कारण टोटल पोटेंशियल कितना होगा, ये तो मैंने पोटेंशियल दिया केवल एक के कारण, इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे कह दो dv, स्मॉल पोटेंशियल कहते हैं dv, तो फिर टोटल पोटेंशियल V इक्वल टू dv इक्वल टू इंटीग्रेट किया और K dq ओवर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 1/2, ठीक। क्या करना है, देखो r और x तो कोई चेंज हो नहीं रहा, कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट है उसे तो बाहर ले लो, तो k कांस्टेंट बाहर ले लिया, और बेटा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ये बाहर ले लिया पावर 1/2, इंटीग्रेशन में बचा dq, कोई दिक्कत नहीं ना। अब पूरे का इंटीग्रेट कर दो, तो dq का इंटीग्रेशन क्या आएगा, dq का इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा kq, dq का इंटीग्रेशन q ओवर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, kq ओवर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, या इसे लिखोगे kq ओवर अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। ये कह दूं कि सपोज x यहां ले लिया, x इक्वल टू 0, यानी ये भी पूछ सकता है एट सेंटर, तो सेंटर पर क्या कर देंगे x इक्वल टू 0, तो देखो ये कितना आएगा v इक्वल टू k q ओवर r स्क्वायर की रूट है ना, ये ऐसे ही तो आएगा, ये स्क्वायर हटा दो, तो क्या आएगा के क्यू ओवर आर आ गया, ये लो, तो ये के क्यू ओवर आर होता है, तो पोटेंशियल एट द सेंटर V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R होता है। किसी भी सर्किल के बाहर अगर चार्ज Q बिखरा हुआ है पूरे पर, तो
तो उसके सेंटर पर पोटेंशियल कितना होगा, V इक्वल टू 1/4 Q ओवर R के बराबर होगा। क्लियर? तो इस तरह से हमने एक ये एग्जांपल कर लिया। तो इस तरह से पोटेंशियल के ये बेसिक एग्जांपल सारे कर लिए जो हमारे मोस्टली सीबीएसई या एनसीईआरटी में इसके बिहार पर थे। ठीक है, चलिए तो वीडियो को ओवर करते हैं। वीडियो हो सकता है थोड़ा बहुत लंबा हो गया हो बेटा, पूरे वीडियो को ठीक से देख लीजिएगा, फिर कोई अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। मैंने कोशिश की है कि मेरे कंटेंट को आप तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। मैं उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आए, आपका काम हो जाए, मेरी मेहनत सफल हो जाए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू बेटा। हैव ए नाइस डे।